ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਪੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ। ਪਹਿਰ ਝੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ, ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ, ਕਿਨੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰੈ ਖਾਏ। ਰਹਾਉ ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ, ਘੀਸ ਗਲੌਰੇ ਲਿਆਵੈ। ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ, ਕਛੂਆ ਸ਼ੰਖ ਬਜਾਵੈ। ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਸਸੈ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ। ਕਛੂਆ ਕਹਿ ਅੰਗਾਰ ਭੇਲੋਰਾਂ, ਲੂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 477 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭੈਂਸੇ ਦਾ, ਬਲਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ। ਕਕਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਖੱਖੜੀਆਂ। ਅੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂੰ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਕ ਸੀ, ਅੱਕ ਵੈਸੇ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਰੇ ਪਕਾਏ। ਬਰੇ ਪਕਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰੈ ਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਖਖੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਗਿਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਉੱਠਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੂਪਰ ਲੱਥਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੁਰਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਜੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਫਰਜ਼ ਖੁਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਨਦਾਨ ਹੈ। ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮਾਣ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੇ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰੇ ਖਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਖੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸਿੱਖ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ
पर मेरे को पहलवानी भी है, तेरे वर्गे मैं कुछ नहीं समझदा, मता भुलेखे च रखी, भुलेखे च रवी कि मैं तेनों नप लिया। उत्थे एक पास्टर सी जां इहों कह लईए ईसाई मत दे नाल संबंधित बंदा सी, उन्हें बड़ी सोहनी गल कही, कह लगा वो दुनिया के लोगों, मैं कहना सा हजरत ईसा इक्को होया जिहड़ा सूली ते चढ़ गया, कहना कुरबान जाओ गुरु कलगीधर पातशाह तो जिन्हें घर घर ही ईसा पैदा किए हुए हैं। कहना एडे पक्के सिख ये डोलते कोई नहीं, ये किहड़ी मिट्टी दे बने हुए ने, खलो के आराम दे नाल डांगा खा रहे हैं, इन्होंने सी तक नहीं की। उहदा कारण इक्को ही निकलदा है। अज भगत कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं, कह लगे राजा राम, जदों उस राजा राम ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने बख्शिश की ना, इत्थे भगत कबीर साहब कह लगे ककरिया बरे पकाए, कहते वो खखड़ियाँ जड़ियाँ अक दे फल भी जोड़े ने वो मिठे अंबां वर्गे हो जाते हैं, जोड़े दुख ने वो भी सिख नूं जोड़े सुखां दे वांग प्रतीत हुंदे ने। पर मिलदा पता किनूं लगदा जी किने बूझन हारे खाए किसे विरले नूं इस गल्लां दी सोझी पैंदी है। सो ये अज दे शब्द दा भाव है। जिन्ने भी इत्थे उदाहरणां ने ये बाहरी उन्हां दियां जानवरां दियां उदाहरणां लैके मनुखी मत दे नाल तुलना दे के बाद उन्होंने गुरमत दे विच तब्दील कीता होया है। आरंभ दे विच बख्शिश करते हैं आसा, आसा राग है जी, कह लगे फील रबाबी बलद पखावज कौआ ताल बजावै। फील कहते हैं हाथी नूं, रबाबी का अर्थ है रबाब वजाउण वाला, बलद का अर्थ है बलद, पखावज का अर्थ है जोड़ी, कौआ का अर्थ है कां, ताल का अर्थ है छैने वजाउणे। कह लगे हुण हाथी की है, हाथी दे कोल सब तो वड्डा औगण ये हंकारी है। चलो इनू कामी भी गिणिया गया, पर इत्थे इहदा हंकार का रूप लिया गया है। हाथी हंकारी है, तो साडे कोल जिहड़ा मन ये हाथी दे वांग सब तो वड्डा हंकारी है। कहते जिहड़ा अगे मन हंकारी सी ना, परमात्मा की बंदगी नहीं सी करदा, मैं मेरी चों नहीं सी निकलदा, जिहड़ा कहंदा सी मैं सारियां तो चंगा हाँ, मैं वड्डा हाँ, मेरे वर्गा कोई नहीं, कह लगे वो हुण रबाबी बन गया। भाव जिवें एक रबाबी सिंह रबाब दियां ताड़ां छेड़ के सुरत परमात्मा दे नाल जोड़ दिंदा है, ये मन दे अंदर इन्नी क निमरता आ गई, हंकार दूर हो गया, ये अपनियां बिरतियां नूं जोड़ के परमात्मा दे नाल आनंद पिया लैंदा है। फील रबाबी हाथी जिहड़ा है, भाव मन रूपी हाथी जिहड़ा हंकारी सी, ये रबाबी बन गया। बलद पखावज कह लगे जिहड़ा बलद है, पखावज का अर्थ कीता जोड़ी, कह लगे ये जिहड़ा ढीठ सी बड़ा, ये आलसी सी। बलद जिहड़ा ये दो चीज़ां होंदियां ने, अगे एक जिक्र आना, एक भैंसे का आना है झोटा, एक बलद। जिहड़ा झोटा हुंदा है तो ये फुरतीला हुंदा, इहदे च जोर ज़्यादा हुंदा है। कभी भी एक कहावत वरती जाती है कि भिड़दे हुए साण नूं हटाउणा जिहड़ा बड़ा औखा है। जदों वो साण आपस च लड़ते हैं ना, उन्हां दे अंदर ताकत बड़ी है। दूसरे पासे जिहड़ा बलद है ये आलसी बड़ा हुंदा है। जदों भी पुराने समय खेतां दे च हल जोया जांदा सी ना, वो बलदां दे उत्ते जोया जांदा सी, संडियां ते नहीं कदी भी। बलद दे कोल ताकत तो है, पर आलसी उन्होंने सोटी दे नाल तोड़ना पैंदा है। बलद इन्ना नहीं समझ सकता कि मैं जिहड़ा मैनूं सोटी मारे उन्होंने फड़ के ढालवां। संडे नूं मारना, झोटे नूं मारना बड़ा औखा, इन्हां नूं साਂਭਣਾ बड़ा औखा है। अज भी जिन्हां ने डंगर रखे ने ना, ये कई मੱਝਾਂ भी इदां ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, काबू करनियां बड़ियां औखियां हो जांदियां ने। सो इत्थे बलद का अर्थ करांगे आलसी, जिहड़ा मन आलसी सी, सुभाਅ की गल की जा रही है। कह लगे जिहड़ा मन आलसी सी, जे कहना कि नाम जपला, कहंदा जे 5 मिनट रुक जाओ, जे कहना फिर अमृत वेले उठ जा, कहना फिर कहना 5 मिनट उठ जाओ, तो अमृत वेले तुसीं एक बारी अलार्म बंद करके 5 मिनट सौ, उदों पता लगदा जो 7-8 वज जांदे ने। कह लगे ये बलद रूपी मन जिहड़ा आलसी सी, जदों परमात्मा की कृपा हुई, आलस छड्ड के हुण जोड़ी पिया वजाउंदा है। कौआ ताल बजावै, कौए की एक बिरती बड़ी भैड़ी है, इनू तुसी खीर पा दिओ, इनू तुसी स्वादिष्ट भोजन पा दिओ, ये फिर भी जाके चुंझ जिहड़ी वो गंदगी दे विच विस्टा दे विच जरूर मारदा है। दूसरी इहदी बिरती है, ये कां बड़ी करदा, टैं टैं बड़ी लाउंदा है। कह लगे जिहड़ा मन अगे विकारां दे विच सुरत नूं लै जांदा सी ना, वो हुण ताल बजावै, ताल का अर्थ छैने पिया वजाउंदा है। भाव वो परमात्मा की बंदगी वाले पासे ये तिन्ने लगे हुए ने। अगे भगत साहब जी बख्शिश करते हैं, कह लगे पहर चोलना गधा नाचै। गधे का वैसे एक जिहड़ा गधा हुंदा है ना, उहदा रूप ये भी लिया गया कि वो चंचलताइयां बड़ियां करदा है, उहनूं जिन्ना मर्जी तुसीं नवा धवा दिओ, घट्टे दे विच लेटे मारेगा। उस तो बाद गधे के उत्ते जिन्ना मर्जी भार लद दिओ, भावें कोला लद दिओ, भावें सोना भावें हीरे लद दिओ, उहनूं इन्हां दी कदर कोई नहीं।
पर इत्थे गधे दे जिहड़े प्रोफैसर साहब सुंगाणा ने अंदरूनी अर्थ लए ने जां फरीदकोटी ने, वो काम रूपी दे विच लए हुए ने। कहण लगे जिहड़ा ये एक कामी सुभाਅ है मनुख दा, वो की करदा है, कहण लगे हुण पहर झोलना, कहंदे वो परमात्मा दे नाम दा भाव खिमा रूपी चोला पा के बंदगी वाला भेख बना के ते परमात्मा दी मौज दे विच उहदे आनंद दे विच झूमदा पिया है। पहर झोलना गधा नाचै भैंसा भगत करावै। भैंसा दा हुणे मैं अर्थ कीता सान संडा। कहण लगे जिहड़ा भैंसा है वो परमात्मा दी बंदगी करदा पिया। भैंसे दा एक रूप हुंदा जी अमोड़ बड़ा हुंदा है। अमोड़ दा अर्थ ढीठ बड़ा। जिवें मैं कहा ना, तुसीं इहनूं जिन्ना मर्जी कुट्टी जाओ, चलो संडे सुंडे ते रखने औखे ने। गां ते मੱਝ साडे घरां च हुंदी है। गां नूं तुसीं दूरों भी डरा दो ना, वो डर जांदी है। मੱਝ दे 5-7 छड्ड दिओ तां भी नहीं कई वारी उहनूं अकल हुंदी। ताइयों कई बारी किसी की तुलना करदी, वो कहंदे भी ये डंगर ही है तो निरी मੱਝ है। एक तो मੱਝ की चमड़ी मोटी, एक उहदा दिमाग भी मोटा ही हुंदा है। सो उसे दा रूप है। कहण लगे ये जिहड़ा भैंसा ये अमोड़ है, इनू कोई हटाउण दा लड़दिआं नूं जिक्र जतन करे जां इनू किसी पासे तो वर्जन का जतन करे, ये वर्जिया नहीं रहिंदा। हुण मनुख दा मन भी एक भैंसे की तरह, एक सांड की तरह है, ये भी आखे नहीं लगता। कह लगे पर जो परमात्मा की बंदगी की, एक परमात्मा की बख्शिश हुई, ये अमोड़ जिहड़ा मन सी, जिहड़ा कभी रब वाले पासे नहीं सी आउंदा, ये आराम दे नाल बैठ के चौंकड़ा ला के उस प्रभु परमात्मा की बंदगी पिया करदा। पहर चोलना गधा नाचै भैंसा भगत करावे। अमोड़ मन परमात्मा की बंदगी पिया करदा है। अगे भगत जी बख्शिश करते हैं, राजा राम ककरिया बरे पकाए। कह लगे राजा राम उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ने इन्नी क कृपा कर दी कि जिहड़े ये अक दे फल सन, जिहड़ियां खखड़ियां सन, उन्हां दे विचों भी जिहड़ी मिठास अंबां वर्गी आउण लग पई, उन्हां नूं अंब बना दिता। कहण दा भाव कि जदों मनुख परमात्मा की बंदगी करता है ना, तो जिन्ना खखड़ियां दे विचों दुख निकलने ने, उन्हां दे विचों ही परमात्मा उन्हां दुखां नूं सुखां दे विच तब्दील कर दिंदा है। राजा राम ककरिया बरे पकाए। अगे कह लगे किनै बूझन हारे खाए। कहते किसी विरले ने इस गल नूं बूझिया, कोई विरला ही इन्हां दुखां नूं सुखां दे विच तब्दील करके वो परमात्मा के चरनां दे नाल जुड़दा है। तो मैं एक बेनती करा, असीं चलो बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, जो बाणी पढ़ते हैं भी साडे तो दुख आउंदे ने ना, तो कई बारी मनुखी मन जिहड़ा है वो नहीं पूरा ना गुरमत का धारण होया, फिर कहंदा मैं इन्नी बाणी भी पढ़ी तो इन्ने दुख क्यों आए। मैं बड़ी बारी एक बेनती करदा, गुरमुखो बाणी नूं कल्ला तुसीं भौतिक तल दे उत्ते या शरीर वास्ते ना वरतो कि मैं शायद बाणी पढ़े तो दुख नहीं आवेगा। जे तुसीं अपना इतिहास पढ़ो ना, तो जिन्हां ने बाणी पढ़ी उन्हां ते ज़्यादा दुख आए जे। मैं एक छोटी जिहा बंद तुहाडे नाल साझा कर देना। अरदास का तीसरा बंद है जी। ये सारे बंदगी वाले ने, पर सारिਆਂ ਦੇ शरीर के उत्ते कष्ट आए हुए हैं। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। हालांकि पिछे आप भाई मनी सिंह ते भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा मना के आए हैं। कह लगे जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सुआसा संग निभाई, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके। अगे शब्द है जी खालसा जी। ये आपनूं ज्ञात होवे, अरदास दे विच 2 वार खालसा शब्द वरतिया है। जिथे बोलिया जाता बोलो जी वाहिगुरू, उत्थे खालसा जी एक 5 प्यारिਆਂ वाले बंद नाल है, एक ये जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ दूजे ते तीजे बंद दे नाल खालसा शब्द है। उहदा कारण ये है कि ये दोवें ही जिहड़े रूप ने ये निरोल खालसे दे ने। 5 प्यारिਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 मुक्तियां, ये भी खालसे ने जदों ਸਿੰਘ सज चुके ने। तो जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ जिन्हां ने आण के सीस दिते, ये भी खालसे बन चुके हैं। कह लगे तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। कहण दा भाव जे असीं बाहरी फिजिकल तौर पर वेखांगे ना भी कष्ट आ रहे ने, कि खोपरियां लहाउणियां सौखियां ने, बंद बंद कटाउणे, चरखड़ियां ते चढ़ना, खन्नी खन्नी ते प्रशादे ते गुजारा करना, बच्चों के टुकड़े जिहड़े हार बना के गल दे विच पवा लेने, ये सौखा काम ने। वेखण नूं ये सारे दुख ने, पर जदों परमात्मा के चरनां दे विच सुरत टिक जाती है ना, तो याद रखियो इन्हां दुखां दे विचों भी मनुख सुख कढ लैंदा जी। आपो अपनी आदत है ना, जिवें असी देखते हैं साडे कोल कमाद है, गन्ना है, सानू जुगत होनी चाहिए है, गन्ने नूं वेलने दे विच पीड़ के असी रस कढ सकते हैं। तेल ने तिलों की कहानी बना के उन्हां दे विचों तेल कढ़िया जा सकता है। हरेक चलो असी अजकल घर च जूसर रखे हुए ने, किन्नियां इहो जिहे फल ने जिन्हां दा असी जूस कढ़ के पी जाने। बंदे नूं तकनीक चाहिए है ना,
कुछ भी किया जा सकता। मैनू इतिहास गाह नहीं जान देता। मैं एक छोटी जी होर उदाहरण दे देना। मीर मन्नू की जेल दे विच एक बार जी ये कलप गया बेचारा मन्नू। इन्हें एक किया कि जड़ियाँ साड़ियाँ मातावां नूं जेलों दे विच कैद किया सी ना, उन्होंने चप्पा चप्पा रोटी का देंदा सी। चप्पा अर्थ समझते चौथा हिस्सा रोटी का, एक एक प्याला तो चप्पा चप्पा खन्नी खन्नी इतिहास ने लिखा रोटी का देना, तो सारी दिहाड़ी इससे तो गुजारा करना। तो सवा सवा मन के पीसने पीसे जो पक्का मन 40 किलो का होंगे, सवा मन तुम 50 किलो ला लो अज की जो तोल के हिसाब न, सवा सवा मन के 50 किलो के तकरीबन बोरी कह दी एक छोटी तोड़ा जो 50 किलो का आता है, जिमें खाद होगी खंड, ये 50 किलो की भरती है। 50 किलो के तकरीब आटा पीसिया जाता है। इन्ने दुख दिते जा रहे हैं। उस तो बाद इन्हां दे उत्ते मानसिक टॉर्चर भी इन्हां नूं कीता जांदा। जिहड़े छोटे छोटे बच्चे ने उन्हां नूं निके निके टुकड़े करके ना उन्हां दी आंदरां कढ के ते हार बना के गलां च पा दिते जांदे ने। इन्हां दे चेहरिਆਂ ते उत्ते फिर भी लाली है, फिर भी परमात्मा की बंदगी पे करते हैं, तो चेहरे उदे उत्ते कोई रोस नहीं परमात्मा के प्रति। एक दिन मन्नू अपने सिपाहियों को कहता, कहन लगा भी ये रोंदियां क्यों नहीं बीबियां। मां नूं सब तो प्यारा अपना पुत हुंदा जी। दुनिया के जिन्ने भी सुख आराम ने ना, सब तो प्यारा उन्होंने पुत है। इन्हें की किया, कहन लगा अजे रिजल्ट करते हैं। उन्होंने एक माँ की गोद के विचों बच्चा चुकया, छोटा जिहा बच्चा अजे दुध चुंगदा है, 1.5-2 साल का होएगा। उन्होंने आसमान के विच सुटिया, थले नेजा करता, नेजे च परो दिता, खंजर मार के अंदरों आंदरा कढ़ लिया, निके निके टुकड़े करके हार बना के माँ के गल दे पा दिता। माँ अडोल बैठी हुई है। उदन जी बाणी पढ़ी जा रही है, रह रास्ता पाठ किया जा रहा है, उस बीबी की वारी है जिहदे पुत के टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं। उन्हें रह रास्ता पाठ किया, अरदास की, अरदास भी उन्हें करनी, वारी दे नाल चलदा सी सारा, क्योंकि संगत इकट्ठी जो सी। अरदास जिस वेले रह रास की कीती, हुण बाहर सिपाही सुनदा पिया। उस बीबी दे अरदास दे बोल सन के धन गुरु कलगीधर पातशाह जीओ, आप जी दे भाणे दे विच दिन बड़ा सुखां दे नाल बतीत होया है। रहन आई है, सुखां दे नाल बतीत करनी। वो बीबी अडोल है, गल दे विच हार पिया होया है बच्चे दा, ओहदियां आंदरां दा, ओहदे टुकड़ियां दा। बीबी अडोल है, बाहर सुनदा होया सिपाही, ओहदियां धां निकल गई। जाके मन्नू नूं कहन लगा, कहंदा जो मर्जी कर दे, रब ही मारे ते मर सकदियां ने, ये तेरे को कौम कदी खत्म नहीं होनी। कहन लगी जिहदी माँ की गल दे विच पुत्तर दा हार पा दिता जावे, वो माँ कहिंदी है दिन सुखां वास्ते निकले। एक गल याद रखी, सिख कौम वास्ते दुखां वाला दिन बनिया ही कोई नहीं है। सिख कौम के उत्ते दुखां वाला कोई दिन नहीं बनया, क्योंकि सिख हमेशा ही चढ़दी कला दे विच रहिंदे ने। ये अकाल दे पुजारी ने, ते अकाल नूं पूज पूज के मौत तो रहत आप भी अकाल हो चुके ने। इत्थे भगत कबीर साहब कह लगे, पर यह पता उन्होंने लगता जिहड़ा अकाल दे नाल जुड़ जाता है। मैं इत्थों कह के चलिया जावांगा बड़ा सौखा है, पर याद रखियो सिੱਖੀ नूं निभाउणा जिहड़ा है वो खंडे की धार ते तुरन दे बराबर है। परसों आप जिक्र किया से गुरु हरकृष्ण साहब जी का जिस वे प्रकाश दिहाड़ा मनाया कि गुरु हरराय साहब महाराज जी ने अपने वड्डे पुत्र राम राय नूं घरों कढ़ दिता। छोटी जी गलती है ना, चलो इतिहास कहता है कि 2 अखर बदले ने, बाणी का सिद्धांत बदलिया है। अज एहो जे मैं परिवार वेखे ने, मैनूं पता बहुतियां ने मेरी गल नाल सहमत नहीं होना, इसलिए एहो जे परिवार वेखे ने जिहड़े आप पूर्ण गुरसिख ने, जो बच्चे पतत पुणे वाल चलते हैं तो माँ बाप जो कंप्रोमाइज़ कर लेंदे ने, कह लगे हुण जी बच्चों को की कह सकते हैं। तो जे तुसी इतिहास वेखो, इतिहास इस चीज़ को नहीं मानता, इतिहास इस चीज़ को प्रवान नहीं करता। बाबा श्री चंद का घर इतिहास जिहड़ा सिद्धांत वखरा है, गुरु नानक साहब का सिद्धांत वखरा है, रस्ते तो एक पासे हो जाते हैं। प्रिथी चंद एक पासे चलता है, गुरु रामदास जी का सिद्धांत वखरा एक पासे हो जाते हैं। धन दौलत दिता जाता है, जमीन जायदाद तो दी जा सकती है, पर वो प्यार नहीं। पर अज असी कहिंदे कहाउंदे होए सिख, मैनू माफ़ करना, असी गल्लां दे सिख बन के रह गए। ताइयों इन्हां गल्लां ते कई बारी शक कर रहे जी ये किद्दां बन गया। जे भलिया तेरे घर च गुरु नानक की सिक्खी कायम ना रही तो तेनों पता भी किद्दां लगेगा बन भी किद्दां गया। ये क्योंकि ये जो सारा अज का शब्द है अर्थ समझने बड़े औखे ने। राजा राम ककरिया बरे पकाए, अक दियाँ खखड़ियां दे विचों अंबां दा स्वाद लेना बड़ा औखा है। भौतिक ताल ते मनुख आखेगा कुफर तोलिया जा रहा है, अक दे विचों अक कौड़ा है, अंब मिठा है, कभी स्वाद नहीं आ सकता। पर बाणी पढ़न वाला कहता ये स्वाद आवेगा जो राजा राम कृपा करता है। राजा राम ककरिया बरे पकाए, पर मिलता किनू किने बूजन हारे,
ਖਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਬੁੱਝਿਆ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ आपा कुर्बान कौम तो उत्तों कर दिता। मैं उस दिन भी कहा सी भाई मनी सिंह का परिवार जिहड़ा है जे सारे शहीद लाइए तो 72 70 72 के तकरीबन पहुँचते हैं, जिन्हों ने समुचे खानदान का खानदान ही गुरु तो कुर्बान कर दिता जब होवे, उन्होंने जाके पुछो ये अर्थ की बनते हैं। किने बूझन हारे खाए कोई विरला जिहड़ा इस खंडे की धार से चलता है। रहाओ अगे कह लगे बैठ सिंह घर पान लगावै, घीस गलौरै लियावै। बैठ दे ठट्ठे नूं सिहारी, इहदा अर्थ करांगे बैठ के। सिंह का अर्थ हुंदा शेर, इत्थे औंकड़ आया घग्गे नूं एक वचन शेर का प्रतीक है। हुण जिहड़ा शेर है वो एक तो खूंखारू हुंदा है, दूसरा जिहड़ा हिंसक है उन्होंने किसी के उत्ते तरस नहीं। हुण शेर ने शिकार करना, वो सामने सया आ जाए, वो सामने हिरन जो भी आ जाए उन्हें झपट के खा पी के वेला हो जाना। पर इत्थे कहिंदे कि जिहड़ा सिंह अमोड़ सी, जिहड़ा शेर जिहड़ा है वो हिंसक सी, नरदईपुणा सी। नरदईपुणे वाली साडी जिहड़ी बिरती सी, जदों परमात्मा की कृपा हुई, पान लगावे दा अर्थ पाना दे बीड़े लगावे दा अर्थ तैयार कर रहा, भाव अर्थ करांगे वो हुण सेवा दे विच लग गया। इनू थोड़ा जिहा होर इउं समझिया जाएगा, बैठ सिंह घर पान लगावै, कि जिहड़ा शेर है जिहड़ा सुभाअ नरदई सी, हुण जे कोई उहदे कोल आउंदा है उहदे वास्ते प्रशादा पानी तैयार करदा है, उहदे वास्ते जिहड़ा है वो आओ भगत लई ते हमेशा तैयार बर तैयार रहिंदा है। उहदे अंदर दा जिहड़ा लोभ की बिरती सी वो खत्म हो गई। अगे शब्द है घीस गलौरै लियावै। घीस का अर्थ है जी चकुंदर, जिन्होंने छछुंदर भी कहिंदे ने। ये चूहे वर्गी हुंदी है पर चूहे तो वड्डी साइज च हुंदी है। हुण इहदा सुभाअ है चकुंदर चूहे, इन्हां नूं जो मिल गया ये छक जांदे ने, किसी वास्ते नहीं छड्डदे। कहण लगे गलौरे का अर्थ करांगे पाना दे बीड़े। हुण शेर वर्गी बिरती जिहड़ी नरदई सी, हुण शेर के सामने चूहा जे चकुंदर आ जाए उन्हें तो मिंटो मिंट छक जाना। पर शेर वर्गी हंकारी बिरती या नरदई बिरती जिहड़ी है पाना दे बीरे ला रही है, भाव वो सेवा लोभ नूं छड्ड के लोक भलाई दे पासे वाल लगी हुई है। जिहड़ी घीस का अर्थ चकुंदर कीता, जिहड़ी छछुंदर चकुंदर जिहड़ी है आप सारा कुछ खा जाती सी, हुण उन्हें अपना लालच नूं छड्ड के ते लोकां दी सेवा दे विच जुड़ी हुई है। जिहड़ी बिरती कहिंदी सी मैं मेरी रह जावे, मैं इहदा भी हक खा जावां, इहदा भी हक खा जावां, उहदे हुण बिरती ये बन चुकी है कि घाल खाए किश हत्थों दे, उह हुण अपने हत्थों कुछ दे के कुछ वंड के जिहड़ा है वो सारियां दा भला पिया मनाउंदा। घीस गलौरै लियावै, घर घर मुसरी मंगल गावै। एक शब्द है मूसा, मूसे का अर्थ हुंदा चूहा, मुसरी का अर्थ करांगे चूही। ये गावै बहु वचन च, इहदा अर्थ करांगे चूहियां। एक मुहावरा वरतिया जांदा जी, मुस्सा भज्जिया मौत तो मौत अगे खड़ी। ये मालवे दे विच ज़्यादा वरतिया जांदा है। मूसे का अर्थ चूहा, इत्थे मुसरी का अर्थ करांगे चूही चूहियां। कह लगे घर घर मुसरी मंगल गावै। हुण चूहियां निक्कियां निक्कियां ये किसी एक पासे टिकदियां नहीं, ये बड़ियां चंचल हुंदियां ने। कह लगे मनु इत्थे भाव अर्थ करांगे साडे ज्ञान इंद्रे, ज्ञान इंद्रे कदी टिकदे नहीं ना, कदी अखां बाहर दा वाशना दा ज्ञान लैंदियां ने, कदी कन जिहड़े ने ये लोकां दी चुगली दा जिहड़ा रस मानदे ने वो सुनदे ने, नासका जिहड़ी है ये दुर्गंधियां नूं सुंघदी पई है, त्वचा जिहड़ी है विकारां वाले पासे होई है, जुबान कूड़ बोलण वाले पासे। ये निक्कियां निक्कियां चूहियां जिहड़ियां सानूं टिकण नहीं ना दिंदियां। कह लगे हुण की कीता जदों परमात्मा दी किरपा होई, घर घर मुसरी, घर घर का अर्थ करांगे हरेक ज्ञान इंद्रा, मुसरी का अर्थ करांगे चूहियां, गावें गावें का अर्थ ये मंगल गावें। ये हुण मंगल का अर्थ हुंदा खुशी दे गीत। कह लगे ये हुण परमात्मा दे खुशी दे गीत गाउंदे ने। जिहड़े ज्ञान इंद्रे अगे विकारां दे विच खचित सन, हुण उहिओ ज्ञान इंद्रे परमात्मा दी बंदगी पे करदे ने। अखां माड़ा तकदियां सन, होए न अखां बाणी पढ़दियां ने, कारण माड़ा सुनदे सन अज बाणी सुनदे ने। जुबान कूड़ बोलदी सी, हुण ये जिहड़ी जुबान है परमात्मा दी बाणी पई पढ़दी है। हथ माड़ा करदे सन, हुण ये सेवा पे करदे ने। घर घर मुसरी मंगल गावै, कछुआ संख बजावै। कछुए दे दो सुभाਅ ने, एक ये मनुख दे कोलों बड़ा डरदा है, दूसरा इहदी पानी दे नाल बड़ी प्रीत है, ये पानी वाल भज के जाता है। पानी का अर्थ करांगे ठंडक, ठंडक का अर्थ करांगे कोरापन, ये अगली पंक्ति च आउणा है। इत्थे अर्थ करांगे कछुए का कि डरन वाली बिरती। जिहड़ा कछुआ मनुख नूं वेख के भज जांदा सी ना, हुण वो संख बजा रहा है, ये एक धार्मिक चिन्ह है। भाव अर्थ करांगे जिहड़ा मन बंदगी तो भजदा सी ना, जिन्हों कहना कि भलिया नाम जप ला,
उदों उन्हें बहाने लाई जाने, कभी मेरा आ काम हो गया, कभी मैनू आ चेता आ गया, आ चेता आ गया, कोई बहाना ना लभे, फिर साडा सिर दुखन लग पैंदा है। ये ना अज भी सुखमनी साहब कर ला, नहीं यार मेरा ना थोड़ा थोड़ा सिर पीड़ करता, टीवी ला दो पता नहीं लगता सिर पीड़ कित्थे गई है। जिहड़ा अगे बहानेबाज मन सी ना, भगत कबीर साहब कह लगे वो हुण मन जिहड़ा है वो परमात्मा की बंदगी पिया करदा। कछुआ संख बजावे, कहंदे वो हुण संख वजाउंदा पिया है, नाद पूरदा पिया है, भाव परमात्मा की बंदगी करदा पिया है। अगे कह लगे बंस को पूत बियाहन चलिया। बंस का अर्थ करांगे बांझ, बांझ उस औरत नूं कहंदे ने जिहदे घर औलाद ना होवे। इहदा अर्थ करांगे माया, माया का अपना तो कुछ है नहीं, ये तो गांह दी गांह ही आउंदी जांदी है ना। कह लगे इहदा भाव अर्थ करांगे मायाधारी, जिहड़ा मनुख की बिरती मायाधारी सी ना, कह लगे बंस को पूत माया दा पुत, भाव मायाधारी मनुख जिहदी बिरती माया वाली रहिंदी सी ना, बियाहन चलिया। कह लगे हुण चंगी बुद्धि नूं विआहण चलिया है, भाव अपनी मत नूं छड्ड के हुण गुरु की मत धारण करन वास्ते तुर पिया है। अपनी मत त्याग दित्ती, मन मत छड्ड दित्ती, गुरमत वाल नूं तुर पिया। बंस को पूत बियाहन चलिया। सो इन्हें मंडप छाए, जिवें कोई विआहण तुरे तो जिथे बरात जानी उत्थे जिहड़ी डेकोरेशन कीती हुंदी है, सोने के छत्तर लगे हुंदे ने, मंडप सजाए हुंदे ने। कहंदे हुण इहदे जिहड़े दसम द्वार दे विच मानो चमक दमक खिड़ी पई है। क्यों? हुण इहदे अंदर जिहड़ा परमात्मा दा ज्ञान टिक चुका है, ये रब दे वाले पासे नूं तुर चुका है। रूप कन्या सुंदर बेदी, बेदी का अर्थ सौखा कर देवां, समा हो गया मैं डूंघियाई च ना जावां। बेदी का अर्थ करांगे विआहणा। कह लगे सुंदर कन्या, रूप कन्या, सुंदर कन्या जिहड़ी है, भाव अर्थ करांगे चंगी बुद्धि। कहंदे चंगी बुद्धि जिहड़ी सी इहने विआह लई, भाव इहने उहदे नाल नाता जोड़ लिया, भैड़ी बुद्धि नूं छड्ड दित्ता ते चंगी बुद्धि जिहड़ी सी इहने अपना लई। किन्ने? भैड़े मन ने जिहदा हाथी वर्गा सुभाਅ सी। स्वरूप कन्या सुंदर बेदी, चंगी बुद्धि नूं बना लिया, अपना लिया। ससै सिंह गुण गाए। सस्से का अर्थ करांगे सिया, सिंह का अर्थ है शेर। कह लगे जिहड़ा सिया अगे शेर नूं वेख के डर जांदा सी ना, जिहड़ा मनुख अगे रब की गल सुनदियां ही भज जांदा सी, जिहड़ा विकारां की गल सुन के भज जांदा सी, जिहड़ा बड़ा डरपोक सी, कहंदे उहने हुण निरभा हो के, सिंह का अर्थ शेर, शेर का अर्थ करांगे भाव अर्थ करांगे निरभा हो के, उस सह रूपी सुभाਅ ने निरभा हो के भाव डर नूं एक पासे छड्ड के परमात्मा की बंदगी करनी शुरू कर दित्ती है। तेरी भगत ना छोड़ो भावें लोक हसे, हुण लोक लाज छड्ड दित्ती, जो मर्जी हुंदा रवे। ससै सिंह गुण गाए। अखीर ते कह लगे कहत कबीर सुनो रे संतो। भगत कबीर साहब कह लगे हे संत जनो ध्यान ना सुनो। की कीटी परबत खाया। कीटी का अर्थ है कीड़ी, परबत का अर्थ है पहाड़, खाया का अर्थ है खा पी गई, रगड़ गई सारा कुछ। भाव अर्थ हुण एक कीड़ी पहाड़ ते चढ़ना ही बड़ा औखा, खा कित्थों सकदी है। इहदा भाव अर्थ करांगे कीटी का निर्मता निमरता। परबत का अर्थ करांगे हंकार। कह लगे एक दिन हंकार झुक जाता है, निमरता जित जाती है। जिस मनुख के अंदर निमरता आ जाती है वह हंकार नूं मलिया मेट करके खा पी के ते दब जाता है। मेरे को हुण समा नहीं, याद रखियो जे किसी नूं जितना है ना, तुहाडी निमरता वड्डे वड्डे हंकार भी जित सकती है। हंकार हंकार नूं कदी नहीं मार सकता, हंकार नूं निमरता मार सकती है। कह लगे कहो कबीर सुनो रे संतो। कीटी परबत खाया कछुआ कह अंगार पे लोरां। कछुए का दूजा सुभाਅ क्या है? ये पानी च रहिंदा। भाव अर्थ करांगे कोरापन, जिहड़ा मन अगे कोरापन सी। अंगार का अर्थ करांगे गर्म, अंगार गर्म हुंदे ने ना कोले। भाव अर्थ करांगे निग। कह लगे वो हुण जिहड़ा मन कोरापन सी ना, वो कहंदा मैनूं बाणी दा निग दे दिओ, मैनूं शब्द सुना दिओ तां जो मेरा भला हो सके। कछुआ कहे अंगार पे लोरां लूकी शब्द सुनाया। लूकी का अर्थ करांगे गति। भाव अर्थ करांगे वो गत, वो अवस्था जिहड़ी अज्ञानता दे विच जिहड़ी सी वो खचित सी, वो अज्ञानता जो ज्ञान दे विच तब्दील होई, वो हुण परमात्मा दे शब्द सुना रही है। अगे मनुख अज्ञानता विच कहिंदा सी रब नां दी चीज़ कोई नहीं है। हुण जे कोई उन्होंने रब की गल पुछदा ते कहिंदा भलिया आ बह के रब दे घर दीयां गल्लां करिए, तू भी कुछ गल्लां सुना ते कुछ तैनूं मैं सुणाउणा तां जो अपना भला हो सके। कछुआ कहे अंगार पे चाहो। कछुए कोरा रूप सुभाਅ कहिंदा मैनूं परमात्मा दे शब्द दा निग मिल जावे। लूकी शब्द सुनाया। कोरापन जिहड़ा उहदा सुभाਅ तब्दील हो गया। जिहड़े मनुख दे अंदर अज्ञानता सी, वो अज्ञानता निकल के परमात्मा दे नाम दे विच इन्नी क जुड़ चकी, हुण आप जपदी है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ नाम पई जपाउंदी है। जिन्हों गुरु रामदास जी कहंदे ने जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावे। हुण वो आप भी जपदा है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी जपाउंदा। सो इस सी शब्द दी विचार। शब्द बड़ा महंगा सी ते मैं कोशिश की है ये, पर मैं सच्ची गल दसां समाप्ति करा,
जिस वेले मैं पढ़ रहा ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬੀਅਤ ਅੱਜ ਢਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਅਰਥ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, कीटी पर्बत खाया। कछुआ कहे अंगार पे लोरा, लूकी शब्द सुनाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की